Hello students, once again to my channel, and in my previous videos I have shown you how part of speech has been used. Different part of speech we have discussed about noun and pronoun. Now we are going to discuss about the third part of speech, that is adjective. An adjective describes, modifies or gives more information about noun or pronoun. Adjective वो होते हैं विच डिस्क्राइब्स, यानी जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं या फिर उसमें मॉडिफाई करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, या और गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन, या फिर हमें और इन्फॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं. अब जैसे मैं ये कहूँ आपसे कि सीता इज़, अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ आपको, सीता इज़ ए गुड गर्ल. अब यहाँ पे देखिए, सीता एक नाउन है मेरा, सीता एक नाउन है मेरा, यहाँ पे गर्ल जो है वो भी एक नाउन है मेरा, और यहाँ पे मैं सीता एक नाउन है, गर्ल यहाँ पे नाउन है. यहाँ पे मैं सीता के बारे में क्या बता रही हूँ, सीता एक गर्ल है, ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास. लेकिन यहाँ पे वो कैसी गर्ल है, वो एक गुड गर्ल है, वो एक अच्छी लड़की है. तो यहाँ पे ये जो गुड जो है वो मेरा एडजेक्टिव है, दैट इज़ एन एडजेक्टिव फॉर मी. तो इसी तरीके से हम और भी कुछ देख लेते हैं वर्ड्स हमारे जो हमारे एडजेक्टिव के लिए है, जैसे कि गुड, बैड, इंटेलिजेंट, क्लीन, डर्टी, स्मॉल, बिग, लेज़ी, ब्रेव, टॉल, शॉर्ट, ब्लैक एंड एक्सेट्रा. ये जितने भी है ये सारे हमारे कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो हम अपने सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, दिस गर्ल इज़ ऑनेस्ट. अब यहाँ पे गर्ल के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वो लड़की जो है वो एक ऑनेस्ट गर्ल है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑनेस्ट जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बताई जा रही है. वी आर टेलिंग द एडजेक्टिव, वी आर टेलिंग दी how describing the girl over here. Now she lives in a large house. Over here we have two nouns. We have two nouns, that is she is a common noun, and once again house is also a common noun. Now we are talking about large. Large is an adjective, but we are talking about which noun? Yeah, here we are describing the house. How is the house? The house is large. The large is your adjective over here. Next is Priya is a kind lady. Now Priya is a proper noun over here and lady is a common noun over here. We are describing what kind of lady she is, what kind of lady, kind lady. So it's been describing the lady over here, the kind. Okay, the lady has been described as kind, Dayalu. So over here the kind is my adjective. The next is Soha is a beautiful girl. Now Soha is once again a proper noun and a girl over here is a common noun. Now common noun, we say, how is the girl? The girl is beautiful. How is the girl? The girl is beautiful. So it is describing the girl over here as beautiful. So beautiful is your adjective. Hope you have understood what an adjective is, because it is very important. It just describes the noun or a pronoun. Okay, so never forget that adjective describes the noun and pronoun in a sentence. Next is the verb. Next other part of speech is verb. What is verb? It shows an action or a state of an object. It shows an action, यानी आप जो काम करते हो या फिर आप जो स्थिति में, जो हमारा ऑब्जेक्ट किस सिचुएशन पे है, उसे हम वर्ब कहते हैं. आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगी वो जो एक्शन वर्ड्स जो होते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं. लेकिन एज नाउ यू हैव बीन इनटू अ बिगर क्लास, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि स्टेट भी होता है, यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट जो है किस सिचुएशन में है वो काम भी आपके वर्ब का होता है. दैट इज़ ऑल्सो वर्क ऑफ योर वर्ब ओवर हियर. नाउ देर आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स. I will make another video for you to understand how many types of verbs are there. There are intransitive verbs, there are transitive verbs, there is non-finite, there are non-finite, there are finite verbs, there are different kind of verbs. But over here we are going to study about main verb and auxiliary verbs. We are going to study about two verbs only, that is main verb and auxiliary verb. Now what are main verbs? Main verbs are like eat, sleep, play, language, sit, stand, speak, come, go, teach, study, cry, etc. ये जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे, all these words over here
are the action doing verbs. These all are your action doing verbs. Like eat, we do an action by eating something. Sleep, we sleep and do something. Play, we play while doing an action over here. But what are auxiliary verbs? Auxiliary verbs tells us that what is the object in which state they are, with the help of is, am, are, was, were, will, shall, have, has, had, have been, has been, etc. Let me tell you one more thing. Helping auxiliary verbs are also known as helping verb. ये जो auxiliary verbs होते हैं इनको हम helping verb भी कहते हैं. Look at some of the examples which I have over here for you. It is she is walking. Now she is walking, वो चल रही है. तो यहाँ पे वो क्या काम कर रही है? वो चल रही है. Walking is my main verb over here. लेकिन वो कब चल रही थी? वो अभी चल रही थी. शी इज़ वॉकिंग नाउ, अभी काम चल रही है वो. तो इस जो है मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है जो मेरी स्टेट को ही बताता है कि मेरे मेन वर्ब जो है किस स्टेट में है. नेक्स्ट इज आंचल इज़ गोइंग टू स्कूल. अब आंचल क्या कर रही है? आंचल इज़ गोइंग टू, आंचल स्कूल जा रही है. ठीक है, तो यहाँ पे इज़ गोइंग जो है मेरा वर्ब है, यहाँ पे गोइंग जो है मेरा मेन वर्ब है और इज़ जो है वो मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है. नेक्स्ट इज़ द डोर वॉज ओपनड. अब यहाँ पे द डोर वॉज ओपन, अब ये ओपन था, यानी मेरा जो ओपन जो मेरा एक्शन जो है मेन वर्ब जो है उसमें वॉज, वो कैसा था मेरा डोर? वो मेरा डोर खुला हुआ था. ठीक है, तो ये मेरा स्टेट बता रहा है कैसा स्टेट था मेरे डोर का. नाउ रिया इज़ अ डॉक्टर. यहाँ पे ये बता रहा है कि रिया इज़ अ डॉक्टर. यहाँ पे देखिए कि इज़ जो है ये इज़ एन ऑक्सिलरी वर्ब और यहाँ पे वैसे तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है लेकिन इस सेंटेंस में वो एक मेन वर्ब की जैसे काम कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास इसके साथ और कोई एक्शन वर्ड नहीं है. वो सिर्फ ये बता रहे हैं आपको कि इज़ आपको ये बता रहा है कि ये डॉक्टर जो रिया जो है वो अब भी डॉक्टर है. वो इस स्टेट में किस सिचुएशन पे है? वो क्योंकि वो अभी वो एक डॉक्टर है. तो इसलिए जो इज़ जो है द इज़ ओवर हियर इज़ योर वर्ब ओवर हियर. नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द एडवर्ब. ये जो एडवर्ब्स जो है बेटा दैट इज़ द सेम एज योर वर्ब्स ऑल्सो. जैसे हमने एडजेक्टिव किए थे, एडजेक्टिव जो है आपके नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, इसी तरीके से जो एडवर्ब्स जो है वो भी आपके वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं. लेट्स सी दी डेफिनेशन ऑफ एन एडवर्ब. एन एडवर्ब मॉडिफाइज और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब जो है एक मीनिंग चेंज करता है, आपके एडवर्ब के मॉडिफाई करता है, चेंज कर देता है थोड़ा सा उसकी मीनिंग को, और या फिर ऐड समथिंग टू द मीनिंग, या फिर उसके वर्ब के साथ कोई मीनिंग ऐड कर देता है, उसका वर्ब का कोई मीनिंग ऐड कर देता है, या फिर एक एडजेक्टिव का मीनिंग ऐड कर देता है, या अनदर या फिर कोई दूसरा एडवर्ब हो उसके मीनिंग को वो ऐड करता है. तो दिस इज़ कॉल्ड एन एडवर्ब. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है मेरे पास, कुछ जैसे कि हमारे कुछ एडवर्ब्स हैं यहाँ पे, लाइक बिफोर, येस्टरडे, येट, स्टिल, स्लोली, फास्ट, डेफिनेट, डिलाइटफुली, ऑब्वियसली, वेरी, ऑलमोस्ट, हाउ, व्हेन, इनफ, हार्ड, हार्डली, एक्सेट्रा. ये सारे क्या है? मेरे एडवर्ब्स है. दीज ऑल आर माई एडवर्ब्स. नेक्स्ट अब कुछ एग्जाम्पल्स, लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स ओवर हियर. लाइक शी इज़ वॉकिंग स्लोली. अभी देखिए ध्यान से समझिएगा कि शी इज़ वॉकिंग स्लोली. शी मेरा नाउन है, इज़ मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है मेरा, वॉकिंग जो है मेरा मेन वर्ब है यहाँ पे, इट इज़ अ मेन वर्ब ओवर हियर, स्लोली इट्स माई एडवर्ब ओवर हियर. अगर हम ये पूछे कि शी इज़ वॉकिंग, हाउ इज़ शी वॉकिंग, वो कैसे चल रही थी, वर्ब से हमने पूछना है क्योंकि वो एक एडवर्ब जो है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है. तो वर्ब से मुझे हाउ इज़ शी वर्किंग, शी इज़ वर्किंग स्लोली, तो वो स्लोली जो है मेरा एडवर्ब है. नाउ लुक इन द नेक्स्ट सेंटेंस. नाउ उसके बिल्कुल सेम जैसा ही है बट मैंने बस इसमें एक वेरी ऐड किया है आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए. नाउ रिया इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली. रिया जो है बहुत ही धीरे चल रही. अब रिया इज़ वंस अगेन अ नाउन, अ प्रॉपर नाउन. इज़ मेरा ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, वॉकिंग जो है मेरा मेन वर्ब आ गया, स्लोली जो है मेरा एडवर्ब है यहाँ पे. अब आप ये कहोगे कि मैम ये वेरी क्या है? यहाँ पे वेरी जो है बेटा आपको ये बता रहा है कि वो कैसे चल रही है, और स्लो उसके बारे में आपके एडवर्ब को और उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है. इस इंफॉर्मेशन इज़ गिवन इज़ वेरी. तो यहाँ पे
जो वेरी जो है यहाँ पे, ये जो वेरी जो है वो भी एक एडवर्ब है। यहाँ पे जो वेरी जो है वो भी एक क्या है, एक एडवर्ब है, क्योंकि वो हमारे स्लोली के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में बताया था कि विच समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी आपको कोई और फर्दर इन्फॉर्मेशन दे रहा हो तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है, एनी इज़ रियली एन इंटेलिजेंट गर्ल। एनी इज़ रियली एन इंटेलिजेंट गर्ल। नाउ एनी, हमारे बारे में एनी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, एनी इज़ अ नाउन ओवर हियर, गर्ल इज़ अ नाउन ओवर हियर। एनी इज़ अ प्रॉपर नाउन एंड गर्ल इज़ ए कॉमन नाउन ओवर हियर। अब इस गर्ल के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन है, ये गर्ल जो मेरा नाउन है, अगर इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है दैट वो ये है कि वो एक इंटेलिजेंट गर्ल है, तो ये तो नाउन है, तो उसके नाउन के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये इंटेलिजेंट क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। ये गर्ल क्या है, ये गर्ल हमारे लिए एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि हम एक गर्ल को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे, और जो गर्ल जो है वो क्या है, एक नाउन। तो ये रियली क्या है यहाँ पे वो किस तरीके की इंटेलिजेंट है, इट इज़ रियली। तो रियली मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसके बारे में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एक एडजेक्टिव के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो इसलिए एक एडजेक्टिव के बारे में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इसलिए रियली जो है वो मेरा एडवर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ लिविंग हैप्पीली इन हिज न्यू हाउस। यहाँ पे ही जो है मेरा प्रोनाउन है, हाउस जो है वो मेरा नाउन है। यहाँ पे ही मेरा प्रोनाउन है, सॉरी, और हाउस जो है वो नाउन है मेरा। अब हाउस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि वो एक न्यू घर में रह रहा है। तो न्यू क्या है, एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, क्योंकि वो हाउस के बारे में, और हाउस क्या है, हमारा नाउन है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको कि न्यू। लेकिन हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे, लिविंग, वो कैसे रह रही है, वो उस घर के, वो कैसे रह रहा है उस घर के अंदर, हैप्पीली। तो हैप्पीली क्या हुआ आपका एडवर्ब। आपको इस वर्ब, ये जो लिविंग वर्ब जो है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वो एक हैप्पीली वहाँ रह रहा है, तो इसलिए हैप्पीली इज़ माई एडवर्ब ओवर हियर। In my next video, we will talk about conjunction, preposition and interjection.